ہے وہ جو بھوکوں کو اناج دیتا ہے، وہ جس سے کل مانگے وہ آج دیتا ہے، جو تیرے اور میرے گیتوں کو ساز دیتا ہے، پرستش کرنے کے لیے ہمیں آواز دیتا ہے، پرندوں کو اڑنے کے لیے پرواز دیتا ہے، شاگردوں پر بھی کھول اپنے راز دیتا ہے، شاگردوں پر بھی کھول اپنے راز دیتا ہے، چڑیا سے مروا باز دیتا ہے، 4 دن کا مردہ بھی قبر سے نکل آئے جب سن یسوع کی آواز لیتا ہے، وہ جو حاکم الحاکمین، وہ جو سلطان السلاطین، وہ جو عارف العارفین، وہ جو انبیاء مرسلین، وہ جو قدوس قدیم، شاہ عظیم، رب العالمین، یہوہ کریم پاک خدا ہے، وہ جو حل مشکلات ہے، قدرت معجزات ہے، مالک کائنات ہے، بناتا دن اور رات ہے، اسی کے دم سے ہماری بات ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے، وہ یہوہ قدوس عظیم پاک خدا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ عجیب اس کی ہر ایک بات ہے، وہ جو سچائی میں کھڑا ہے اور ازل سے ذبح کیا ہوا بھرا ہے، جس میں ہر ایک دکھ ہماری خاطر جڑا ہے، جو ہماری خاطر صلیب پر چڑھا ہے، ہمارے گناہوں کی خاطر مرا ہے، وہی فرماتا ہے ایمان رکھو جہاں 2 یا 3 اس کے نام میں اکٹھے ہو، وہ اپنے لوگوں کے درمیان آموجود کھڑا ہے، اور جو تمہارے درمیان آموجود کھڑا ہے اسی نے تو اپنے پاک روح قدس سے تمہیں بھرا ہے، وہ جو نور کو پوشاک کی طرح اوڑھتا ہے، طوفانوں کے رخوں کو موڑتا ہے، ٹوٹی امیدوں کو جوڑتا ہے، شیطانی زنجیروں کو توڑتا ہے، ابلیس بھی جس کا نام سن کر دوڑتا ہے، وہ جو ایلیا پر آسمان کو کھولتا ہے، وہ جو گرجتے بادل کی طرح بولتا ہے، وہ جو پہاڑوں کو پلڑوں میں تولتا ہے، وہ عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ جو خدا نوح کا خدا ابراہیم اسحاق اور اسرائیل کا خدا ہے، وہ جو موسیٰ ہارون یشوع کا خدا ہے، وہ جو سمسون ساموئیل داؤد سلیمان کا خدا ہے، وہ جو ایلیا الیشع یسایہ یرمیہ حزقیل دانیل ہوسیہ یوئیل عموس عبدیہ یونہ میکا نحوم حبقوق صفنیہ حجی زکریا اور ملاکی کا خدا ہے، وہ جو تمام تر پرانے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کے نبیوں کا خدا ہے، وہ جو متی مرکز لوکا یوحنا پترس رسول پالوس رسول سلاس رسول حلفی کا برتلبائی کا یہودا کا یعقوب کا تدی کا توما کا فیلپس کا اندریاس کا اور یوحنا عارف کا خدا ہے، وہ جو تمام تر نئے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے رسولوں کا خدا ہے، وہ جو آسمان سورج چاند ستاروں فضاؤں ہواؤں کہکشاؤں پہاڑوں چٹانوں چوٹیوں چشموں دریاؤں سمندروں زمین کی مٹی سے آدم اور آدم کی پسلی سے ہوا اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی کو چلانے والا خدا ہے، کیونکہ دنیا کی تاریخ یسوع کے گرد گھومتی ہے، یسوع آسمان زمین نبیوں رسولوں فرشتوں سمیت تمام مخلوقات کا خدا ممود ہے، یسوع وہ ہے جو آدم سے لے کر یوم عدالت تک ہر ایک برگزیدہ اور ایماندار جس کا منتظر ہے اور رہے گا، ابراہم بھی اس کے دنوں کو دیکھنے کا منتظر تھا، اس سے پہلے کہ ابراہم تھا یسوع ہے، یسوع بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، یسوع جلال حشمت حکمت قدرت طاقت تنجید تعریف پرستش بندگی عبادت بزرگی اور سجدوں کے لائق ہے، دنیا میں کوئی ایسا ترازو نہیں جو یسوع کی قدرت اختیار اور از حد بھاری جلال کو تول سکے، دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں جو یسوع کی محبت رحم کرم ترس اور فضل کی حدوں کو ماپ سکے، دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو یسوع کے ذہن ارادوں سوچوں اور خیالوں کو پرکھ سکے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو یسوع پر گناہ ثابت کر سکے، یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ گناہگاروں کا نجات دہندہ ہے، وہ نصانی ہے، اس کے جیسا نہ کوئی تھا نہ ہے اور نہ ہوگا، وہ کمزوروں کی طاقت، وہ غریب یتیم مسکین بیوہ کے حق کا محافظ ہے، وہ تو آزمائش میں پھنسے ہوئے لوگوں کا متحد مددگار ہے، وہ تو آگ کی بھٹی میں الہزادے کی صورت کی مانند اتر جاتا اور بچا لیتا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا لنگڑوں کو چلنا دیتا گنگے بہروں کو بولنے اور سننے کی طاقت دیتا مفلوجوں کو بحال کرتا کوڑیوں کو پاک کرتا مردوں کو زندہ کرتا، وہ کہے تو پانی میں بن جاتا ہے، اس کی ایک جھڑکی سے سمندر ساکن ہو جاتے ہیں، وہ حکم صادر کر دے تو درخت اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہاتھ بڑھائے تو آندھیاں اور طوفان سب اپنے شرغل میں تھم جاتے ہیں، وہ آسمان کی پیمائش اپنے بالشت سے کرتا، وہ پہاڑوں کو پلڑوں میں توڑتا اور ریت کو مٹھی میں بند کرتا، وہ گناہگاروں کو معاف کرتا قیدیوں کو آزاد کرتا، وہ حکمت کا چشمہ نجات کا دروازہ، وہ زندگی کی روٹی، وہ زندگی کا پانی،
वो दुनिया का अब्दी नूर, वो राहत और जिंदगी है, वो भेड़ों का अच्छा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। उससे कायम रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता ये कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा उसके बगैर कायम नहीं रह सकता। फकी और फरीसी उसका मुकाबला न कर सके, पैंतीस तलातुस हैरोदीस उसमें जुर्म न पा सके, मौत और कब्र उस पर फतह न पा सकी, इब्लीस उस पर गालिब न रह सका, बल्कि आका मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी ने मौत पर भी फतह पाई, कब्र पर भी फतह पाई और इब्लीस के सारे कामों को निस्तो नबूद करके उसके सर को कुचला और उसके सर को कुचलने के बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद वो हुक्म सादर करता है, वो फरमाता है, वो कहता है कि देख मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूँ और अब्दुल तक जिंदा रहूंगा। मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मौत और आलमोरवा की कुंजियां मेरे पास है। वो फरमाता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के नाफे देने के लिए अजर मेरे पास है। अल्फा और मेगा मैं हूँ, अव्वल और आखिर मैं हूँ, इब्तिदा और इंतहा मैं हूँ, राहत और जिंदगी मैं हूँ, भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दोस्त मैं हूँ, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ, हिकमत का चश्मा मैं हूँ, नजात का दरवाजा मैं हूँ, दाऊद की असल और नस्ल मैं हूँ, सुबह का रोशन सितारा मैं हूँ। और जो मूसा से झाड़ी में कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, उसी के जिंदा बदर के जलाली लसानी लफानी ला तब्दील ला मुतबद्दल जुर्दबद्दल सबसे अजीम सबसे आला सबसे सुंदर सबसे खूबसूरत यीशु अल मसीह नासरी के खूबसूरत नाम में आप सबनों को मेरी तरफ से प्यार भरा, मोहब्बत भरा, अकीदत भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल हो। हालेलुया। और जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए बजाएं। आइए कलाम अक़दस में से आज बाइबल मुकद्दस इंसान के बया मौका बातें टोकरी में सोने के सेब है। आज कौन सा मौका है? आज का कौन सा दिन है? खजूरों का इतवार, पाम संडे। तो मैं चाहता हूं कि आज हम उसी के तल्लुक से सीखें, क्योंकि आज का दिन ऐसा है, आज का मौका ऐसा है। घर के अंदर चूंकि शुक्रगुजारी की इबादत है, ये सब जानते हैं। खुदा ने अपना फजल अपना जलाल वाला हाथ बढ़ाया, भाई बेबी को भाई खालिद को उनको सेव किया और उन्होंने मुनासिब जाना कि अपने घर के अंदर अपने बहन भाइयों को बुलाकर, अपने ज़िज़ोकारब को बुलाकर, खुदा के खादमों को बुलाकर खुदा की शुक्रगुजारी की जाए। हालेलुया। तो इस तल्लुक से आज हम मौके की बनिस्बत से देखेंगे कि खुदा ने जो आज का दिन हमें बख्शा है उसका हमारी जिंदगी के अंदर क्या अमल दमल है। हालेलुया। तो आए मेरे साथ खोलिए मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब 12वीं आयत से 13वीं आयत। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुन के कि यीशु यरूशलेम में आए हैं, खजूरों की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना मुबारक है खुदावन के नाम पर आते हैं और इस्राएल का बादशाह है। आमीन आमीन। यहाँ पर हमने खूबसूरत मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के अंदर से तलावत सुनी। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग ईद मनाने के लिए इकट्ठे हुए। इकट्ठे कहाँ पर हुए? यरूशलेम के अंदर। और मेरे अज़ीज़ों, ये ईद कौन सी मना रहे हैं? ये ईद मना रहे हैं ईद फसा। अब आज आपने चंद लम्हे गौर से सुनना है कि क्या खुदा का पाक कलाम हमें बता रहा है और सिखा रहा है। अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, अपनी जिंदगियों के अंदर लेते हैं, तो कलाम अक़दस के अंदर खुदा ने बहुत सारी ईदें जो है इंट्रोड्यूस करवाई। खुदा ने बहुत सारी ईदें जो है मुतारफ कराई। खुदा ने कौम बनी इसराइल को बताया कि तुमने फला दिन फला ईद मनानी है, फला दिन फला ईद मनानी है। खुदा ने जब बहुत सारी ईदें उनको इंट्रोड्यूस करवाई तो उन ईदों में से एक ईद थी ईद फसा।
अब ये जो ईद फसा है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब कौम बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से निकलकर बियाबान के अंदर आए, तो वहां पर खुदा उनसे कलाम करता है, हुक्म करता है और उनको कहता है कि तुमने ईद फसा मनानी है। कौन सी ईद मनानी है? ईद फसा। अब खुदा ने उनको ये हुक्म दिया कि तुमने ईद फसा मनानी है, और ये ईद तुम लोगों ने इस तरह से मनानी है कि तुम बियाबान के अंदर हो। अब जब वो बियाबान के अंदर है, उनका अपना कोई घर नहीं है, उनका अपना कोई मोहल्ला नहीं है, उनका अपना कोई शहर नहीं है, उनका अपना कोई मुल्क नहीं है, बल्कि वो बियाबान के अंदर है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र के अंदर थे, तब उस रात खुदा ने कौम बनी इसराइल से कहा कि तुम में से हर एक अपने घर में बर्रा ज़बह करे और उस बर्रे का खून लेकर अपने घर की चौखट पर लगाना, और जब तुम चौखट पर उस खून को लगाओगे तो क्या होगा? उस रात मैं मौत के फरिश्ते को भेजूंगा। जब मौत का फरिश्ता ऊपर से गुजरेगा तो उस रोज वो जिस घर की चौखट के ऊपर खून लगा होगा, उस चौखट को छोड़ देगा, उस घर को छोड़ देगा। उस घर के अंदर कोई मौत नहीं होगी, उस घर के अंदर कोई रोना नहीं होगा, उस घर के अंदर कोई मातम, कोई आहो नाला नहीं होगा। लेकिन जो कौम मुल्क मिस्र के अंदर मिस्री थे, उन्होंने खून नहीं लगाया, लेकिन खुदा ने जब अपने पाक फरिश्ते को भेजा, तो जब पाक फरिश्ता आता है तो उसने जिस घर की चौखट पर खून लगा देखा, उसने उस घर को छोड़ दिया। लेकिन जिस घर की चौखट के ऊपर खून नहीं लगा था, वो तमाम के तमाम घर कौम मुल्क मिस्र के थे, मिस्री लोग थे। तो खुदा के पाक कलाम के अंदर लिखा, उस रात खुदा ने तमाम बनी इसराइल के पलटों को मारा और बनी इसराइल को सेफ किया। और जब वो सेफ होकर रात वहां से निकले, तो फिर अगले रोज खुदा ने उनसे कहा कि तुमने इस याद को याद रखना है, इस बड़े मौजूदे को याद रखना है, इस काम को याद रखना है कि खुदा ने किस तरीके से तुम्हें मुल्क मिस्र के अंदर से निकाला। अब जब वहां से निकल कर आ गए, बियाबान के अंदर रहना शुरू हो गए, तो वहां पर खुदा ने कहा कि अब तुमने इसकी याद दहानी करनी है और तुमने ईद मनानी है। उस ईद का नाम है ईद फसा। और ईद फसा का मतलब है, कोई बता सकता है ईद फसा का क्या मतलब है? ईद फसा का मतलब है ऊपर से गुजर जाना। जिस रात खुदा का फरिश्ता ऊपर से गुजरा और उसने बनी इसराइल को सेव किया, लेकिन मुल्क मिस्र के अंदर मौत और वबा आई। अब जब ये लोग बियाबान के अंदर आकर रहना शुरू हो गए, तो खुदा ने इनसे कहा कि तुम लोगों ने ईद फसा मनानी है। और ईद फसा जो मनानी है, ये इस तरह से मनानी है कि ये नस्ल दर नस्ल मनानी है। ये तुमने नहीं, बल्कि तुम्हारी आने वाली नस्लों ने मनानी है। ये तुम्हारे लिए एक दायमी आइन होगा, ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून होगा कि तुम लोगों ने इस तरीके से इस ईद को मनाना है। और ये ईद जो है, ये घर के अंदर नहीं मनानी, ये ईद जो है घर के अंदर नहीं मनानी, बियाबान के अंदर मनानी है। और जब तुम ये ईद फसा बियाबान के अंदर मनाओगे, तो ये ईद तुमने झोपड़ियों के अंदर मनानी है, होटलों के अंदर नहीं, कमरों के अंदर नहीं, घरों के अंदर नहीं, बल्कि बियाबान के अंदर तुमने क्या करना है? झोपड़ियां बनानी है। और झोपड़ियां जो बनानी है, वो तुमने खजूर की डालियों की बनानी है, क्योंकि खजूर जो है मेरे अजीजों, उसके अंदर इतनी ताकत और साकत है कि खुदा ने जब इनसे कहा कि ये ईद तुमने 7 दिन के लिए मनानी है, तो खजूर की डालियों की झोपड़ियां बनाकर उनके अंदर तुमने रहना है। तो ये इसलिए कहा गया क्योंकि खजूर के अंदर ये ताकत और साकत है कि वो 7 दिन तक उसके पत्ते सूखते नहीं, और उसका साया जो है
वो भी ठंडा रहता है। अब ये लोग इस ईद को मनाना शुरू हो गए। बियाबान के अंदर रहकर ये 40 साल तक बियाबानों के अंदर ईद फसा मनाते रहे। उसके बाद जब ये मुल्क कनान के अंदर आ गए तो फिर भी इन्होंने इस रवायत को कायम रखा, इनकी नस्लों ने इस बात को कायम रखा। ये दूर दराज से भी कुछ लोग, जब बाबल ने हमला किया तो बहुत सारे इसराइली भटक गए, कुछ ईरान चले गए, कुछ इराक चले गए, कुछ रोम की सल्तनत के अंदर सेटल हो गए। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये लोग जो थे वहां पर जब सेटल हुए तो बहुत सारे लोग बिखर गए, कोई मशरिक को निकल गया, कोई मगरिब को, कोई शमाल को। लेकिन इनके लिए हुक्म ये था, कानून ये था, आईन ये था कि ये ईद जो ईद फसा है तुमने इकट्ठे मनानी है, तुमने नस्ल दर नस्ल मनानी है और 7 दिन के लिए मनानी है, और घरों के अंदर नहीं बल्कि बियाबान में झोपड़ियों के अंदर मनानी है। चाहे कोई महल में रहता है, चाहे कोई कोठी में रहता है, चाहे कोई घर में रहता है, चाहे कोई होटल में रहता है, लेकिन जब ईद फसा आनी है, जब ये ईद आनी है, तुम लोगों ने अपने घर छोड़कर बियाबान में आकर डेरे लगाने हैं, वहां पर झोपड़ियां बनानी है और झोपड़ियों के अंदर रहकर तुम लोगों ने इस ईद को मनाना है। तो ये सिलसिला जो है ये नस्ल दर नस्ल चलता रहा। लोग दूर दराज से आते और आकर वहां पर इस्राएल में यरूशलेम में आकर झोपड़ियां बनाते, और ये जो यरूशलेम था ये पहाड़ों के अंदर, ढलानों के अंदर, नावों के पास अजीबोगरीब सिचुएशन में था। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि लोग आते और आकर वहां पर झोपड़ियां बनाते और झोपड़ियां बनाकर वहां पर ईद करते। अब सुने, आगे मजे की स्टोरी शुरू हो रही है जहां से हम पाम संडे को मनाते हैं। अब ये लोग दस्तूर के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक उस ईद को मनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी दुनिया में आए तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपनी जब खिदमत का आगाज किया तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है बेटी को जिंदा किया, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा 4 दिन का मुर्दा लाजर जो था उसको भी खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा किया। अब ये 4 दिन का जो मुर्दा था इसको जिंदा करने का 4 दिन बाद मकसद ये था, कौम बनी इसराइल ये कहती थी, यहूदी लोग ये कहते थे कि मुर्दा जब डेड हो जाता है उसके बाद क्या होता है, 3 दिन तक उसकी बॉडी जो ठीक रहती है, उसके बाद उसकी बॉडी गल चढ़ जाती है और उसकी रूह जो है वो भी आसमानों में चली जाती है। लेकिन आकर मेरे जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने लाजर को 4 दिन के बाद जिंदा किया, क्योंकि वो कहते थी कि एक जादू दे नाल मुर्दे जिंदा करता है, ये जादूगर है। यीशु के लिए ये टाइटल कहा जाता था। कहते थे कि ये जादू की मदद से, बाले फगूर की मदद से, बाले बुगुश की मदद से ये मुर्दों को जिंदा करता है। तो 4 दिन का मुर्दा जब खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये बयान कर दिया कि मैं ही अल्फा और मेगा, अव्वल और आखिर हूँ, और मैं ही मुर्दों के अंदर जिंदगी भरने की कुदरत रखता हूँ, ताकत रखता हूँ, जोर रखता हूँ। हालेलुया। तो अब खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा किया। अब जब 4 दिन का मुर्दा जो लाजर था ये ईद फसा से कुछ दिन पहले जिंदा हुआ था। अब ईद फसा के लिए लोग दूर दूर से आए थे, आकर उन्होंने झोपड़ियां बनाई थी और झोपड़ियां बनाकर वहां पर रहना शुरू कर रहे थे ईद को मनाने के लिए। अब जब लोगों ने सुना कि 4 दिन का मुर्दा लाजर जिंदा हुआ है, लोगों के अंदर एक अजीब बेचैनी, एक अजीब हलचल कि हम उस 4 दिन के मुर्दे लाजर को मिलकर आते हैं। अब ये जो लाजर था ये रहता था बैतनिया में, और यरूशलेम जो था वो नीचे ढलानों में था। बैतनिया ऊंचा था, यरूशलेम नीचे था। अब 4 दिन का मुर्दा जो जिंदा हुआ है वो बैतनिया में हुआ है।
ईद फसा जो मनाई जा रही है वो नीचे यरूशलेम में मनाई जा रही है। अब जो यरूशलेम में ईद मनाने के लिए आए हैं उन्होंने आपस में कहा कि चलो हम ऊपर चलते हैं। ये तकरीबन 6-7 किलोमीटर का फासला था ऊपर पहाड़ पर जहां पर बैतनिया था। तो वो आपस में कह रहे हैं कि हम ऊपर जाकर लाजर को मिलते हैं और यीशु को भी देखते हैं जिसने 4 दिन का मुर्दा लाजर जिंदा किया। अब खुदा यीशु मसीह ऊपर बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते उन्होंने कहा कि चलो यरूशलेम की तैयारी करते हैं। अब ऊपर से वो नीचे को आने की तैयारी कर रहे हैं और जो नीचे वाले लोग हैं ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं कि चलकर यीशु को मिलते हैं और लाजर को मिलते हैं। और यीशु मसीह ऊपर से नीचे यरूशलेम में आने की तैयारी कर रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा जाओ उस फलाने गांव में वहां पर तुम्हें गधी का बच्चा मिलेगा, उसको खोल कर ले लेना। अगर कोई तुमसे कहे, अगर तुम उसको खोलते हो और तुमसे कोई पूछे कि ये क्या करे तो कहना उस्ताद को इसकी जरूरत है, उस्ताद को इसकी जरूरत है। शागिर्द क्या वैसे ही उन्होंने गधी का बच्चा खोला, किसी ने पूछा, उन्होंने बता दिया। मैसेज बहुत लंबा है, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। अब बच्चा लेकर वो चले गए तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा खुदा यीशु मसीह बैतनिया से यरूशलेम को आए और यरूशलेम के लोग बैतनिया को जाने की तैयारी में हैं। खुदा यीशु मसीह ईद फसा करने के लिए यरूशलेम में आ रहे हैं और यरूशलेम के लोग जो झोपड़ियों में ईद के लिए इकट्ठे हुए हैं वो ऊपर यीशु को मिलने के लिए जा रहे हैं, लाजर को मिलने के लिए जा रहे हैं। अब जब ये मामला सारा चल रहा है तो खुदा यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आ गए। जब सवार गधी के बच्चे के ऊपर सवार करने का मकसद ये होता था कि हमने इसको अपना बादशाह एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है। खजूरों का इस बात का ऐलान होता था कि जब खजूर की डालियां हाथों में लेकर लहराई जाती थी रोम के अंदर, जब कोई फतह करके आता, जब कोई जीत कर आता, जब कोई जंग जू सूरमा अजीजों किसी पर गालिब होकर आता तो उसके इस्तकबाल के लिए लोग खजूर की डालियां लेकर निकलते। खजूर की डालियां जो थी फतह मंदी का निशान थी। अब खुदा यीशु मसीह यरूशलेम को आ रहे हैं और यरूशलेम के लोग ऊपर को जा रहे हैं यीशु मसीह को देखने के लिए। अब जब वहां से ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर रास्ता तय हो रहा है तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा वहां पर जब खुदा यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर आए तो आकर उन्होंने दूर से देखा और यरूशलेम को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गया और यीशु मसीह ने कहा ऐ यरूशलेम, मैंने बारहा चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों तले छुपाती, बड़ों तले छुपाती है, मैं भी तुझे छुपा लूं, मगर तूने ना चाहा। देख तेरे अंदर जितने नबी आए सब के सब कत्ल हो गए और मैं भी तेरे अंदर आता हूं ताकि मैं भी कत्ल किया जाऊं। खुदावंद यीशु मसीह का ये आखिरी विजिट था यरूशलेम के अंदर। अब जब यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के साथ वहां पर आ रहे हैं तो मेरे अजीजों बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि उन लोगों ने क्या किया जब उनको पता कि ये वो यीशु है जिसने 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा किया, उन्होंने अपने घर तोड़ना शुरू कर दिए। हालेलुया! उन्होंने अपने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया, अपनी झोपड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। और जब उनको पता चला कि बादशाह का बादशाह आ रहा है, खुदावंदों का खुदावंद आ रहा है, उन्होंने अपने घरों की झोपड़ियां तोड़ी, अपनी डालियां पकड़ी और जाकर मेरे आका मुरज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी के कदमों में बिछाना शुरू हो गया। लोग समझते हैं कि वो डालियां गधे के लिए बिछाई नहीं जा रही थी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था, बल्कि उस गधे के ऊपर जो हलीम बादशाह सवार था, ये डालियां, ये कपड़े मेरे आका की शान अक़दस के लिए बिछाई जा रही थी। और लोगों ने उनके कपड़े बिछाकर, डालियां बिछाकर बुलंद आवाज से नारे लगाना शुरू कर दिए, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हालेलुया!
और वहां के लोगों ने इतराज किया, उन्होंने कहा, रोम की हुकूमत वालों ने कहा, हमने तो कहा था यहाँ पर ईद करनी है, इनसे बादशाह बनाने का किसने कह दिया। और जब ये शेयर कर रहे थे तो मेरे और आपके आका जी खुदा यीशु मसीह नासरी ने कहा कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। रोम की हुकूमत के लोग चीखे मारते हैं, पुकारते, कहते हैं इनको चुप करा, तो ये तो ईद करने के लिए आए हैं, हमने तो कहा था ये यरूशलेम में ईद करें, ये तो ईद करने के लिए आए थे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये आकर बादशाह कबूल करे जा रहे हैं, बादशाह बनाए जा रहे हैं। तो अजीजों, वहां पर एक अजीब हलचल मच गई। जब शोर पड़ा तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। तो वहां पर उनका इस्तकबाल किया गया। इस वजह से खजूरी इतवार जो है हमारी जिंदगियों के अंदर आया। आज हम जब टहनियां पढ़ते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, चर्चेस के अंदर गलियों को, मोहल्लों को सजाया जाता है खजूर की डालियों से, तो ये एलानिया ऐलान है कि हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, अपना बादशाह मानते हैं। हालेलुया। और ये जो बादशाह है मेरे अज़ीज़ों, ये अज़ल से बादशाह है, ये बादशाहों का बादशाह है। दुनिया में बड़े बादशाह है, लेकिन सबसे बड़ा बादशाह आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, जिससे खुदावंद यीशु मसीह के लिए आज भाई बेबी ने अपने घर के अंदर ये इबादत का इंतजाम किया कि उस बादशाह के बादशाह की शुक्रगुजारी की जाए जिसने हमें महफूज रखा है। हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर, मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा, मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, एक बड़ी भीड़ है जिन्होंने सफेद जामे पहने हैं, जो बर्रे के लहू से धोकर पाक और साफ किए गए, और उन्होंने अपने हाथों में खजूरों की डालियां पकड़ी हुई हैं। आसमान के ऊपर खजूर की डालियां लहराई जाती है। आप लोग जब जमीन पर खजूर की डालियां लहराते हैं, आसमान पर भी लहराई जाती है। जब आप जमीन पर उस बादशाह के बादशाह को बादशाह मानते हैं, तो आसमान पर हजारों लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं जब आप यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। हालेलुया। तो अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुकाशफा के अंदर जो डालियां पकड़ी हैं लोगों ने, वो आम लोग नहीं है, वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जाने खुदावंद यीशु मसीह के लिए दी है। आपके लिए ये कहना चाहता हूं, अगर आप खजूरी इतवार मनाते हैं, पाम संडे मनाते हैं, हाथों में टहनियां लेकर मनाते हैं, तो ये याद रखें, ये शहादत की निशानी है। इसका मतलब है कि हम यीशु के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। हमारा यीशु फतेहमंद यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सब लोग को बहुत ज्यादा बरकत दे, ब्लेस करे।